Good morning, ladies and gentlemen. On behalf of University of Delhi, a very warm welcome to our chief guest, Srimad Bhakti Vedanti Siddhanti Maharaj Ji, international preacher and Vice President, International India, Vedant Trust, New Delhi. A hearty welcome to Professor Yogesh Singh, Honorable Vice Chancellor, University of Delhi. Professor Balram Pali, Chairman, Managing Committee, Gandhi Nagar, and Dean of Colleges, University of Delhi. Professor Shri Prakash Singh, Director, South Delhi Campus, University of Delhi. Professor K.P. Singh, Director, Gandhi Bhavan, University of Delhi. All distinguished deans, directors, heads, principals, professors, university officials, and invited guests. A very warm welcome to you all to the International Seminar on Integrating Bhagavad Gita's Values in Modern Education and Management, organized by Gandhi Bhavan, University of Delhi, in collaboration with International Rotary, Vedant Trust, New Delhi, and Aditya Mahavidyalaya, University of Delhi. भारतीय परंपरा के अनुसार कार्यक्रम का शुरुआत हम जगत पिता परमेश्वर को नमस्कार देकर और विश्व कल्याण की प्रार्थना का संवाहन करते हुए वैदिक स्वस्ति वाचन के साथ दीप प्रज्वलित करेंगे. I request the dignitaries of the day to kindly join us for lighting of the lamp. Vandeham Shri Guru Shri Radha Shri Guru Vaishnava Shri Guru Sahajana Sahajanathanvitam Sadhivam Sadvetam Sahaguram Shri Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Parama Sahagana Ladika Shri Vishakam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Thank you very much. I request everyone to kindly rise for the University Kuli. महाविद्यालयों के परिसरों से चिर सुशोभित छात्र और छात्रा जनगण जय जय ज्ञान का लोक अनुपम श्रेष्ठ सुंदर जयति जय जय ज्ञान का लोक अनुपम सकल वसुधा निज कुटुंब की भावना संस्कृति सनातन आधुनिक शिक्षा पुरातन ज्ञान धाराओं का संगम देश की स्वाधीनता भूमिका शतकोटि निष्ठकृत सत्यम के मंगल दिव्य भावों का समागम जयति जय जय जयति जय जय ज्ञान का आलोक अनुपम
जन कर रहेंगे छात्र और छात्राएं नीचे सदकरे प्राचार पावन साधना संकल्प से नवल वैश्विक चेतना नव क्रांति संस्कारों का उद्गम जयति जय जय जयति जय जय ज्ञान आलोक अनुपम श्रेष्ठ सुंदर दिव्य दिल्ली विश्वविद्यालय विहंगम जयति जय जय जयति जय जय ज्ञान आलोक अनुपम ज्ञान का आलोक अनुपम ज्ञान आलोक अनुपम ज्ञान का आलोक अनुपम। Thank you. Gandhi Bhavan, a brilliant, vibrant academic center of University of Delhi, was established in 1958 with a mandate to promote Gandhian ideas and his philosophy. Under the dynamic and inspiring leadership of its present director, Professor K.P. Singh, Gandhi Bhavan has organized a number of programs. Some notable events are a 3-day international conference on innovation, infrastructure and building New Bharat in November 22, which was inaugurated by His Excellency, Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankarji. In March 23, under the auspices of the Har Ghar Dhyan, a meditation program was convened in the University Stadium with Pandit Shri Shri Ravi Shankarji as the chief guest and Shri Manohar Lal Khattarji as guest of honor. The ancient science of yoga was catapulted to the world stage by the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, when the United Nations took cognizance of his proposal and declared 21st June as International Day of Yoga. Yoga Day is celebrated with great fervor in Gandhi Bhavan. In 2022, Yog Guru Baba Ramdev was chief guest and Shri Arjun Ram Meghwal was the guest of honor. श्रीमद् भागवत गीता मानव सभ्यता का एक ऐसा महानतम ग्रंथ है जो जीवन को संपूर्णता के साथ देखता है। श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्यायों और 700 श्लोकों में लोक और परलोक का सार तत्व उद्घाटित किया गया है। गीता जीवन प्रबंधन यानी लाइफ मैनेजमेंट का एक मंत्र है। प्रबंध कला के सभी महत्वपूर्ण सूत्र लाइक स्मार्ट वर्क, टीम वर्क, बैलेंस, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, टीम को मोटिवेट करने की कला, उद्देश्यों के प्रति फोकस रखना आदि प्रबंधन मैनेजमेंट की विविध सूत्रों का बोध श्रीमद् भागवत गीता में दिए गए हैं। योग कर्मसु कौशल, कर्म की कुशलता ही योग है। Perfection in action is yoga. Gita promotes holistic development. It suggests teaching methods, defines roles of students and teachers, promotes individual development, and most of all, it teaches complete samarpan of the student to his teacher, where he places full faith in his guru. Because what is faith? It is the knowledge within the heart which is beyond the reach of truth. This is what Gita teaches us. I request Professor K.P. Singh, Director Gandhi Bhavan, to kindly deliver the welcome address. नमस्कार, हरे कृष्णा। आज के मुख्य अतिथि जो वन डे इंटरनेशनल सेमिनार इंटीग्रेटिंग भगवत गीता वैल्यूज इन मॉडर्न एजुकेशन एंड मैनेजमेंट श्रीपद भक्ति वेदांता सिद्धांति महाराज जी, आपका दिल्ली विश्वविद्यालय के इस पवित्र प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे कुलगुरु प्रोफेसर योगेश सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। साउथ दिल्ली के
डायरेक्टर प्रोफेसर श्री प्रकाश सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, वंदन है। मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे प्रिंसिपल, जिसमें कि सविता रॉय जी, प्रोफेसर इंद्रमान कपाही जी, मैडम CID, डीन यूनिवर्सिटी इंजीनियर्स, नाम देना सबका संभव नहीं है। वेरियस टीम्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंजीनियर्स and devotees from the foreign countries, USA, UK, Russia, Korea, Finland, France, a very warm welcome for this one-day international seminar, a very pertinent topic, भागवत गीता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत वंदन है आज के इस प्रोग्राम के लिए। मैं सबसे पहले अपने कुलगुरु प्रोफेसर योगेश सिंह जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जब भी इस तरह के प्रोग्राम का प्रपोजल मैं उनके पास लेके जाता हूं, वो हमेशा, मैं हर मन से कहता हूं कि वो प्रोत्साहित ही नहीं करते, बल्कि उसका पूरा एग्जीक्यूशन भी देखते हैं, क्योंकि वो योगेश उनका जो नाम है और योगेश जिसके ऊपर आज कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसे हम योगेश से भी बोलते हैं, तो उसी का अलग आपका सानिध्य, आपका प्यार ऐसा बना रहे। और आज मैंने एक लाइन, डीसी साहब हमेशा सबकी बड़ी तारीफ करते हैं और वो प्रशंसा खुल के करते हैं, प्रेरित भी करते हैं, लेकिन मैंने 2 लाइन सर आपकी परमिशन से आपके लिए कहना चाहूंगा, पूरी हमारे गांधी भवन की तरफ से है कि आपके जैसा कहीं मिला ही नहीं, कैसे मिलता कहीं था ही नहीं। आप जहां तक दिखाई देते हैं उससे आगे देखता ही नहीं। तो आपका जो व्यक्तित्व है, और ये सच है कि जो प्रोग्रेस करने वाले होते हैं वो प्रतिशोध का रास्ता नहीं, परिवर्तन का रास्ता अख्तियार करते हैं। और ये परिवर्तन की जो लहर दिल्ली विश्वविद्यालय का है, आपके माध्यम से जो चारों तरफ हमारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और जो आज के जो महाराज जी हैं, मैं उनके बारे में थोड़ा पढ़ रहा था, सच्चे मायनों में जो हमारी स्पिरिचुअलिटी है, जो हमारी लेगेसी है, उसको वर्ल्ड वाइड मार्की नहीं, बल्कि उनको वहां पर हमारी जो लेगेसी है, हमारी जो हेरिटेज है, उसको उसके साक्षात दर्शन कराना। और इतनी संख्या में जो आप काम कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु से ये गौड़िया संस्था शुरू हुई और उसके आप वाइस प्रेसिडेंट है सर, पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय आपके लिए बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करती है। आज का विषय ऐसा नहीं है कि कोई जानते नहीं, और कृष्ण को न पढ़ने की जरूरत है, उसको अपनाने की जरूरत है। उनकी जो फिलॉसफी है, क्या है श्री कृष्ण, क्या है श्री राधे। मुझे एक प्रसंग याद आता है श्री राधे का, क्योंकि कृष्ण हमेशा प्रैक्टिकल नॉलेज में ज्यादा विश्वास करते थे। थ्योरेटिकल नॉलेज की बात नहीं करते, प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करते थे। तो उनकी जो महारानी रुक्मणी जी ने कहा कि क्या जी आप मुझसे कम प्रेम करते हैं, जय जयकार तो श्री राधे की ही होती है, तो उनको कैसे जवाब दें। उन्होंने लीला रची और वो बीमार हो गए। जब ज्यादा बीमार हुए तो देवताओं में हड़कंप मच गया। वहां से नारद जी आए, इसका सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन बताया गया कि कोई भी महिला अपने पैर के पानी स्पर्श करके उनके सिर पर लगाएगी तो कृष्ण ठीक हो जाए। रुक्मणी जी को बुलाया गया तो रुक्मणी जी कहते ना ना ना, मैं ये पाप नहीं कर सकती, नरक की भोगी बनूं, मैं ऐसे कैसे कर सकती। राधा को बुलाया गया। राधा ने तनिक मात्र भी नहीं सोचा और पैर का पानी स्पर्श कृष्ण से किया और कृष्ण ठीक हो गए। तो लोगों ने कहा कि अरे तुम नरक की भोगिन बनेगी। राधा कहती मुझे उसकी परवाह नहीं है, मेरा कृष्णा ठीक हो जाए, मेरे लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये प्रेम है और प्रेम हमेशा मजबूत नहीं करता, मजबूत करता है। ये कृष्ण की बात है। क्या है कृष्ण? किसी ने पूछा कि क्या है श्री कृष्ण और क्या है श्री राधे।
तो श्री कृष्ण, सुगंध है तो खुशबू है श्री राधे। श्री कृष्ण विश्व है, श्री कृष्ण सौभाग्य है, मतलब भाग्य है तो सौभाग्य है श्री राधे। और श्री कृष्ण पूर्ण है तो श्री राधे है परिपूर्ण। आज जो हम देखते हैं चारों तरफ, हमें सच्चे मायनों में मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि अगर हिंदुइज्म है तो हिंदुस्तान है, और हिंदुइज्म है तो ह्यूमनिज्म है। क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है, जो हमारी लेगेसी है, हमें सिखाया जाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः। वसुधैव कुटुंबकम की जो परिकल्पना है हमारे विचारों में है, हमारे जो हमारी पूर्वज की जो लेगेसी है उसमें समाहित है। लेकिन आज हमें ये भी सोचना होगा, खासकर शिक्षण संस्थानों से, ये मेरी व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन मैं ये हमें कहना चाहता हूं कि जब तक हम अपनी लेगेसी को, अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को सिलेबस में नहीं डालेंगे, बच्चों में उसका जो बीज है वो कैसे प्रेरित होगा? सदियां लगा दें, अगर एम के पास ऑल इंडिया पर्सनल बोर्ड है तो हिंदू के पास ऑल इंडिया सनातन बोर्ड क्यों नहीं? इसमें सोच की बात करनी पड़ेगी। और मैं तो ये देख रहा हूं कि हर शिक्षण संस्थानों में अगर हम देखते हैं तो वहां सिलेबस जो पढ़ाया जाता है, और दिल्ली विश्वविद्यालय को 101 साल लगे हिंदू स्टडी खोलने में। जब वो हमारे सिलेबस में नहीं पढ़ाया जाएगा तो हमारे बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे? क्योंकि ये शाश्वत है जिसकी संस्कृति, जिसकी सभ्यता उसके समाज की रसों में दौड़ती है, रंगों में दौड़ती है, वो कांटों में भी खिलती है। उसका एग्जाम्पल आप इजराइल में देख सकते हैं। तो हमें अपनी सभ्यता संस्कृति को, अगर वो कॉलेज से नहीं चलेगी, यूनिवर्सिटी नहीं चलेगी, सिलेबस से नहीं चलेगी, और इसके लिए हम धन्य हैं कि जो ऑनरेबल वाइस चांसलर ने सोचा, और शायद इस तरह की स्टडी हमारे स्टडी सेंटर हुए। और मैं हमेशा एक बात को बड़ी विराम करता हूं कि अपनी परंपराओं से, अपनी लेगेसी के, अपने पूर्वजों की पूंजी से आप हमेशा रिचार्ज रहिए, जैसे आप मोबाइल को रिचार्ज रखते हैं। नहीं तो इतिहास गवाह है, जिस बिजली के करंट में, जिस तारों में करंट नहीं होता, लोग कपड़े सुखा देते। तो हमें ही प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज तो एनवाई कब तक करते रहेंगे? हमें भी उसके लिए जाना होगा, हमें भी जाना होगा। तो आज हम चाहते हैं कि हमारा यूथ हमें ये पढ़े और पढ़ाए। आप सभी यहाँ आए, अंत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत वंदन। जय श्री कृष्ण। Thank you, sir. I request Professor Yogesh Singh, Honorable Vice Chancellor, University of Delhi, to kindly felicitate our chief guest, Srimad Bhaktivedanta Siddhanti Maharaj Ji, International Preacher and Vice President, International Gaudiya Vedanta Trust. Thank you very much, sir. I now request Professor K.P. Singh, Director, Gandhi Bhavan, to kindly felicitate Professor Yogesh Singh, Honorable Vice Chancellor, University of Delhi.
I request Dr. Rajkumar Falwari ji to kindly felicitate Professor Shri Prakash Singh, Director, South Delhi Campus. I now request our chief guest, Srimad Bhakti Vedant Siddhanti Ji Maharaj Ji, to kindly felicitate Professor Yogesh Singh, Honorable Vice Chancellor, University of Delhi. I request our chief guest to kindly felicitate Professor Shri Prakash Singh, Director, South Delhi Campus. I request once again our chief guest to kindly felicitate Professor K.P. Singh, Director, Gandhi Bhavan, University of Delhi. Thank you very much, sir. As a part of this program, today we also have a book launch. The name of the book is Primer for Social Science Research, which has been authored jointly by Dr. Amit Kishorji and our very own Professor K.P. Singh, Director, Gandhi Bhavan. I request Dr. Amit Kishorji to kindly join us on the days for the launch of this book. I request Professor Yogesh Singh, Honorable Vice Chancellor, University of Delhi, to kindly deliver the presidential address. नमस्कार। आदरणीय श्रीपद भक्ति वेदांता सिद्धांत महाराज जी, इंटरनेशनल टीचर एंड वाइस प्रेसिडेंट इंटरनेशनल गौड़िया वेदांता ट्रस्ट, प्रोफेसर श्री प्रकाश सिंह, डायरेक्टर साउथ कैंपस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, प्रोफेसर के.पी. सिंह, डायरेक्टर गांधी भवन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, प्रोफेसर इंद्र मोहन त्रिपाठी, ऑनरेबल मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, other respected deans, directors, heads, principals, distinguished faculty members, and my dear friends, students, और भगवान कृष्ण के भक्तजन,
आप सभी का मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सबकी हिम्मत को बधाई भी देता हूँ, दाद भी देता हूँ कि इतना मौसम खराब है आज दिल्ली के अंदर कि आप सब लोग अपने घरों से निकल कर आए हैं, उसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। आप हिम्मती लोग जो आए बहुत सारे लोग तो होते ही हैं आज शायद सबसे ज्यादा दिल्ली की हालत खराब है। ये जो इंटरनेशनल सेमिनार का आयोजन गांधी भवन ने किया, इंटीग्रेटिंग भगवत गीता वैल्यूज इन मॉडर्न एजुकेशन मैनेजमेंट, भगवत गीता के मूल्यों का आधुनिक शिक्षा और मैनेजमेंट में समावेश। इसके लिए मैं गांधी भवन का भी और प्रोफेसर के डी सिंह का आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने ऐसा सोचा और आयोजन करने की एक आवश्यकता महसूस हुई, जिसकी की बहुत जरूरत है भारतीय शिक्षा में, भारतीय शिक्षा संस्थान में। इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान कुरुक्षेत्र में दिया, बहुत साल पहले दिया, लेकिन युगों युगों से ये जो ज्ञान है गीता का प्रासंगिक है। इसमें तो शायद किसी के मन में कोई भाव नहीं आएगा, सब इससे सहमत होंगे कि प्रासंगिक है और आगे भी सदैव रहेगा। और प्रश्न उठता है कि क्यों रहेगा और क्यों प्रासंगिक है। प्रासंगिक है मानव के कल्याण के लिए, मानव के उत्थान के लिए, मानव के ध्यान के लिए, मानव के प्रज्ञान के लिए और मानव के संज्ञान के लिए। ये बहुत आवश्यक है। मानव को मानव बनाने का, मानव को मानव बनाने की राह दिखाती है गीता, और मानव को दानव बनने से रोकने की राह दिखाती है गीता। भारत की विश्व को यह अद्भुत भेंट है, भारत की विश्व को यह अद्भुत भेंट है, अद्भुत देन है। भारत को गर्व कराती है गीता और भारत को भारत बनाती है गीता। ये बात है इस गीता की कि भारत को भारत बनाती है गीता। पर एक मन में मेरे प्रश्न आता है, स्वाभाविक तौर पर हम सब जितने लोग बैठे हैं, बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न आता होगा कि क्या गीता को शिक्षा से दूर रखा जा सकता है और क्या गीता को शिक्षा से दूर रखा जाना चाहिए? क्या कोई शिक्षा का तंत्र गीता के बिना भारत में हो सकता है या बन सकता है? ये प्रश्न है जो भारत के लोगों के, भारत के बच्चों के, भारत के शिक्षा के लोगों के मनों में उठता है, उठना चाहिए। ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन आजाद भारत ने यह गलती करी और समझ बूझकर यह गलती करी कि गीता को शिक्षा से दूर रखा, बहुत बरस तक दूर रखा, और उसके दुष्परिणाम, उसके होने वाले फायदे न होने का कारण हम घर घर में, समाज में, देश में, काल में, भारत की समझ में देखते हैं। अब 75 वर्ष की आजादी हो गई और देश का एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, भगवत गीता के मूल्यों पर आधुनिक शिक्षा में समावेश विषय पर एक सेमिनार कराने की सोचता है, तो आप समझ सकते हैं कि ये इंप्लीमेंट तो हुआ ही नहीं था। इसकी आज आवश्यकता महसूस हो रही है और कहीं कोई एक आध बात कहीं इंप्लीमेंट हुई हो। बॉलीवुड ने तो थोड़ी बहुत इंप्लीमेंट कर भी दी, एक आध पिक्चर में गाना भी डाल दिया और आप सब लोग उसको जानते भी होंगे उस गाने को। लेकिन जब शिक्षा में बात आई और शिक्षाविदों का जो मन और मानस था वो इससे दूर रहा। कीर्ति सिंह साहब ने बहुत अच्छा कहा कि विद्यार्थियों को पढ़ाने की आवश्यकता नहीं भैया, पहले प्राध्यापकों को पढ़ाने की आवश्यकता है। सबसे पहले प्राध्यापकों को पढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि प्राध्यापकों का मन सही से बनेगा तो विद्यार्थियों में जाएगा, अदरवाइज क्या होगा, कथनी और करनी का जो अंतर है वो नजर आएगा। इसलिए सबसे पहले प्राध्यापक, उसके बाद में ये जाना चाहिए प्राध्यापकों के माध्यम से विद्यार्थियों के अंदर, देश, समाज और काल के अंदर। तो इस पर काम हुआ नहीं जो होना चाहिए था, पर अब होगा।
हुआ नहीं, पर अब होगा, हमें करना है। और क्यों करना हम चाहते हैं? विश्व के कल्याण के लिए, भारत के उत्थान के लिए। ये समय की आवश्यकता भी है, सामरिक आवश्यकता भी है, विश्व की आवश्यकता भी है, भारत की आवश्यकता भी है। शिक्षा से जुड़े लोगों को खुले मन से इसको आत्मसात करना चाहिए और इसको इंप्लीमेंट करने पर काम करना चाहिए। जब गीता से जीवन मूल्यों की बात आती है तो बहुत सारे इसमें प्रसंग हैं, बहुत सारे श्लोक हैं, बहुत सब एक से एक अच्छे हैं। सबसे ज्यादा मैं जो समझता हूं, यदि मुझे शुरुआत करनी हो और यदि देश चलाने के लिए, विश्वविद्यालय चलाने के लिए सबको इसको इंप्लीमेंट करना चाहिए अपने जीवन में, सिर्फ गाने और बोलने की बात नहीं है, उसको इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है। तो वो मैं मानता हूं जब भगवान कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्माते संगो सत्व कर्मणि। मतलब इसका ये हो गया कि कर्म हमें करना चाहिए, वो हमारा काम है, अधिकार है, लेकिन उसमें अपना हित नहीं देखना चाहिए। क्योंकि गीता को शिक्षा से दूर रखा तो इसमें से जो एडमिनिस्ट्रेटर निकले, प्रोफेसर्स निकले, इसमें से जो देश चलाने वाले निकले, वो कोई भी नीति बनाते हैं तो उनके में से बहुत सारे लोग मन में आता है इसमें मेरा क्या फायदा। और यदि कोई मेरा फायदा इसमें नहीं है, मेरा हित इससे जुड़ा हुआ नहीं है, वो हित केवल पैसे की बात नहीं कर रहा मैं, वो हित प्रमोशन का भी हो सकता है, वो हित और कोई हित हो सकता है। अगर मेरा जुड़ा हुआ नहीं है तो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब भगवान ने कहा कि कर्म करने पर अधिकार है और उसके हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए कि हमारा क्या इसके अंदर है, लेकिन क्योंकि हमारा है नहीं इसके लिए हम काम ही ना करें, ये भी नहीं होना चाहिए। सबसे ज्यादा क्या होता है, जब हमें लगता है हमारा इसमें कोई फायदा ही नहीं है तो हम करते ही नहीं वो काम, छोड़ो यार इसको साइड पे करो, इससे तो हमको कोई फायदा ही नहीं है। तो निज हित जो है वो इतना ज्यादा पावरफुल हुआ हमारे देश के अंदर कि हमने जनहित को देखना कम कर दिया। यदि गीता पढ़ाई गई होती स्कूल से, कॉलेजेस में पढ़ाई गई होती, बार बार पढ़ाई गई होती कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, तो हमारा मन मानस ऐसा बनता कि हम सोचते ही नहीं कि मेरा इसमें क्या। अगर आप अपना सोचोगे, आपको आवश्यकता नहीं, आप जनहित की बात कीजिए, जनहित का सोचिए, दूसरों के लिए अच्छा सोचिए, आपका अच्छा ये प्रकृति, भगवान, ईश्वर, सिस्टम जो है वो सोचेगा। ये यूनिवर्सल लॉ है। लेकिन अगर आप अपने हित में ही फंसे रहेंगे तो समझ लीजिए कि आप अपने इफेक्ट को भी कम कर रहे हैं, इम्पैक्ट को भी कम कर रहे हैं और अपने कॉन्ट्रीब्यूशन को भी कम कर रहे हैं। ये गीता हमें सिखाने का प्रयास करती है। परंतु जो कर्म है, गीता का मूल है, तो कर्म तो सभी करते हैं। कुछ अच्छे कर्म करते हैं, कुछ बुरे कर्म करते हैं। बुरे कर्म करते हैं तो रिजल्ट बुरा आता है, अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छा आता है। तो सदकर्म करने, ये इसके साथ है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते की सदकर्म करने, अच्छे कर्म करने हमें चाहिए। और अभी मैडम एंकर कर रही थी, उन्होंने बताया कि भगवान ने कहा गीता में योग कर्मसु कौशलम, कि कर्म में कुशलता ही योग है। यानी जो हम करते हैं वो अच्छे से करने में ही करना ही योग है। हमने उसकी बड़ी छोटी डेफिनेशन ले ली। क्या ले ली? योग का मतलब है शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का सामंजस्य बिठाना योग है। योग आसन करना योग है, वो तो है ही, लेकिन वो उसका छोटा प्रारूप है। उसका जो लार्जर गोल है कि जो हम काम करते हैं, जिसके लिए हम बने हैं या हम अपनी इच्छा से आए, हमें वो बेस्ट करना चाहिए, तभी इसका सार्थक होता है। जो भगवान कहते हैं कि योग कर्मसु कौशलम। अगर एक प्राध्यापक, क्योंकि हम शिक्षा से जुड़े लोग हैं इसलिए मैं फिर प्राध्यापकों का ही एग्जाम्पल लेता हूं, कि सुबह योग करते हैं, ध्यान करते हैं, आसन करते हैं, और जब क्लास में आते हैं या तो क्लास लेते नहीं है, या वक्त पे शुरू नहीं करते, या मन से नहीं पढ़ाते, या पूरा नहीं पढ़ाते, या इन्वॉल्व होकर नहीं पढ़ाते, या बच्चों को मजा नहीं आता। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी योग्यता होगी, लेकिन आप में वो कुशलता नहीं है जो भगवान एक्सपेक्ट करते हैं कि आप टीचर हैं। ऐसा करो ना कि कुछ मजा आ जाए बच्चों को, समय पे आना। लोग मुझसे बात करते हैं बहुत बार, और सही भी बात करते हैं, कि जी हमारे को जो है प्राध्यापकों के लिए भी क्या बोलते हैं उसको, अटेंडेंस के लिए जो बायोमेट्रिक सिस्टम लगाना चाहिए। मैंने कहा इस पर चर्चा तो कर सकते हैं, लेकिन वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम लगाने की सोचते हैं।
इसका मतलब यह हुआ कि भरोसे का इतना संकट हो गया कि मशीनों पे विश्वास जब हम लेकर जाएंगे तो क्लास तक तो पहुंचा देंगे, आगे वो क्या करेंगे उसका क्या करोगे। तो वो जो इन्वॉल्वमेंट है, काम उनके मन और समझ पे करने की जरूरत है। बायोमेट्रिक इसमें कोई मदद करने वाली नहीं है, इसीलिए शायद मैं इसका बहुत समर्थक नहीं हूं इसका बायोमेट्रिक लगाने का, लेकिन मन पे काम करना उद्देश्य एक ही है कि समय पे जाना, अच्छे से पढ़ाना, अच्छे से। तो वो भगवान जो कहते हैं, यदि हमने गीता पढ़ी, श्लोक को याद किया और उसको इंप्लीमेंट नहीं किया तो उसका क्या अर्थ है? बहुत सीमित अर्थ है उसका। इसी कारण से गीता को शिक्षा से दूर किया तो ये प्रभाव है। अदरवाइज बच्चे को यदि नर्सरी से, पहली क्लास से, दूसरी क्लास से बार बार पढ़ाया सिखाया जाए अलग अलग रूपों में कि योग कर्मसु कौशलम, तो फर्क तो पड़ेगा। एक और बात है गीता से जो हमें बहुत सीखने की आवश्यकता है। जैसे भारत में कहा भी जाता है कि अगर सत्य अधूरा बताया जाए तो अर्थ का अनर्थ कर देता है। सत्य यदि अधूरा बताया जाए, पहले तो क्या है कि सत्य, मैं क्योंकि इतने स्वामी और इतने विद्वान बैठे, मैं थोड़ा घबरा के बोल रहा हूं कि पहले तो सत्य ही अपने आप में एक क्लियर डेफिनेशन नहीं निकलती, परिस्थिति सापेक्ष हो जाता है। कई बार लोग अपने अपने तरीके से उसको भी डिफाइन करते हैं। पर चलिए, जो भी है, एब्सोल्यूट सत्य भी अगर है, उसका भी यदि अधूरा बताया जाता है तो अर्थ का अनर्थ होता है। क्योंकि गीता पढ़ाई नहीं गई देश में, गीता का पे कोई बात नहीं हुई, सबको पता नहीं था, तो आधी बात बताई गई और देखिए कैसे अर्थ का अनर्थ होता है। हम सबको बताया गया और सही है वो, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है। ये हमने पढ़ा, सबने पढ़ा और हम मानते भी हैं इसको, और सच भी है, ठीक भी है, पर अधूरा है वो। भगवान ने ये नहीं कहा कि अहिंसा परमो धर्म, कंप्लीट हमें लेना चाहिए, समझना चाहिए। वो कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तदैव च। ये है वो श्लोक कि अहिंसा मनुष्य का परम धर्म है, भगवान कह रहे हैं। किंतु धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करना उससे भी श्रेष्ठ कर्म है। अहिंसा परम धर्म है, परंतु धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करना उससे भी श्रेष्ठ कर्म है। आपने अधूरा बता दिया, सारा देश परेशान हो गया उसमें। फौजी भी लड़ने जा रहा है, वो भी सोच रहा है यार कि अहिंसा परमो धर्म, और उसका धर्म क्या है। तो यानी कई बार अधूरा भी, लेकिन देश बोला नहीं इस पे, देश ने मान लिया क्योंकि देश को पता ही नहीं था कि दूसरा वाला हिस्सा भी था इसका। आपने भगवान को आधा कोट किया, पर कोई बोला नहीं देश में, क्योंकि पता नहीं था किसी को। यदि गीता पढ़ाई जाएगी, गीता का सार, गीता की समझ शिक्षा में डाली जाएगी, जो बहुत आवश्यक है देश के लिए, तो ऐसी गलती देश करेगा नहीं, भारत करेगा नहीं। भारत बार बार गलती कर तो देता है, अनजाने में कर देता है, बहुत बार उसको ठीक जानकारी न दी जाए तो कर देता है। एक और संस्कृत का श्लोक है जो गीता से प्रभावित मुझे नजर आता है, धर्मो रक्षति रक्षितः। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ कि भगवान ने ऐसा कहा था क्या कि धर्मो रक्षति रक्षितः। तो हमारे डीएसडब्ल्यू साहब हैं प्रोफेसर रंजन त्रिपाठी, मैंने कल रात को उनको फोन किया, मैंने कहा आप तो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हैं, तो जरा मुझे बताइए कि धर्मो रक्षति रक्षितः ये क्या गीता में भगवान ने भी कहा था क्या। तो उन्होंने रिसर्च करी इस पर, तो उन्होंने बताया कि ये इस तरह से तो कभी नहीं आया, क्योंकि ये तो और जगह से बाद में बात हुई, लेकिन इसके डिफरेंट फॉर्म्स गीता के अंदर आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्ट तो बात नहीं हुई, इनडायरेक्ट इस पर बहुत बात हुई कि अगर धर्म की रक्षा करोगे तो वो तुम्हारी रक्षा करेगा। ये मूल है, धर्म की रक्षा करोगे वो तुम्हारी रक्षा करेगा। और धर्म की रक्षा अगर होगी तो हम रहेंगे, नहीं होगी तो क्या होगा। धर्म की रक्षा नहीं होगी तो होगी केवल अराजकता, अराजकता और अराजकता, chaos इन द होल सिस्टम। पर इसकी एनालॉजी को यदि थोड़ा आगे बढ़ाता हूं, जब महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हुआ, यह सबसे बड़ा अधर्म का कृत्य था। सब मानते हैं, कोई ऐसा है जो नहीं मानता। सबसे बड़ा अधर्म का काम हुआ जो द्रौपदी का चीरहरण हुआ। उस अधर्म के काम के समय न तो भीष्म बोले, न द्रोणाचार्य बोले, न कृपाचार्य बोले, न धृतराष्ट्र बोले। क्या यह केवल दुशासन का ही अधर्म था? क्या ये इन सबका अधर्म नहीं था जो कुरुवंश के बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे थे, उस समय के पावरफुल लोग बैठे थे? यदि भीष्म खड़े हो गए होते उस दिन, तो क्या उस अधर्म को टाला नहीं जा सकता था?
यदि द्रोणाचार्य जो इतने बड़े विद्वान थे, अगर वो खड़े हो गए होते तो टाला नहीं जा सकता था क्या? विकर्ण बोला, विदुर बोले, दो व्यक्ति बोले थे उस दिन सभा के अंदर, कौरवों की सभा के अंदर, द्रौपदी के चीरहरण के समय। और जब दोनों को सभागार से अपमानित करके निकाला गया तो भी इनमें से कोई नहीं बोला। तो अधर्म पर स्क्वायर, अधर्म क्यूब, अधर्म 4 हुआ। तो आपने जब धर्म की रक्षा नहीं करी तो धर्म ने कुरुवंश की रक्षा भी नहीं करी और महाभारत हो गया, नाश हो गया कुरुवंश का। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि यदि उस दिन धर्म की रक्षा कर ली होती तो शायद महाभारत को टाला जा सकता था। तो बड़े लोगों की, पावरफुल लोगों की, पोजीशन पे बैठे लोगों की का पहला दायित्व है, गीता सिखाती है कि धर्म की रक्षा करो। अगर आप धर्म की रक्षा नहीं करेंगे, यदि आप न्याय नहीं करेंगे जो न्याय की आपसे अपेक्षा है, और अधर्म होगा, तो आपकी जब जरूरत पड़ेगी तो यह धर्म रक्षा नहीं करेगा। यह मूल मंत्र है। यानी राष्ट्र के संदर्भ में बोलता हूं तो जब आप राष्ट्र की रक्षा करोगे तो राष्ट्र आपकी रक्षा करेगा। अगर 10 लाख की, 15 लाख की फौज बॉर्डर पे खड़ी है आप हमारी रक्षा के लिए, तो उसकी रक्षा की जिम्मेदारी तो समाज की है, देश की है। तो ये एक जुड़ी हुई बात है सारी की सारी। तो गीता ने कितनी बड़ी बात बताई, पर हमने शिक्षा से दूर रखा। वो मानस भारत का नहीं बना जो बनना चाहिए था। ये हमें बहुत ध्यान देने की बात है। और फिर अगर अधर्म पे इतनी बात है तो भगवान क्या बोलते हैं अधर्म को लेकर? द्रौपदी के साथ अधर्म हुआ, भगवान ने बाद में इंटरवेंशन किया, उसमें अधर्म को रोकने का प्रयास भी किया भगवान ने, लेकिन किसी विद्वान व्यक्ति ने उस समय नहीं किया। तो भगवान क्या बोलते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का उत्थान होता है, मैं जन्म लेता हूं। किसके लिए? साधुओं की रक्षा के लिए, अच्छे लोगों की रक्षा के लिए, दुष्ट लोगों के विनाश के लिए, और धर्म को स्थापित करने के लिए मैं हर युग में जन्म लेता हूं। पर मुझे लगता है भारतीय हर बार भगवान पे क्यों छोड़ देता है कि भाई संभवामि युगे युगे, भगवान ही आएंगे, वही कुछ करेंगे, हे भगवान रक्षा करो। पर पहले हर बार राष्ट्रपति शासन क्यों लगवाना है? डेमोक्रेसी है। भगवान आएंगे तो राष्ट्रपति शासन लग गया ना। वो तो हम अपना कर्म ठीक से नहीं कर रहे या करना नहीं चाहते या जो भी रीजन रहे, हम सोचते हैं कि भगवान, लेकिन भगवान आएंगे वो ठीक है अपनी जगह, पर भगवान को क्यों आना पड़े? क्यों आना पड़े? भगवान को न आना पड़े। ये तब संभव होगा यदि भारत की शिक्षा में गीता होगी, वरना न जाने कितनी बार भगवान को आना पड़ जाए दुष्टों के नाश के लिए। इसीलिए गीता के मूल्यों को बचपन से शिक्षा में हमें लाना चाहिए। शिक्षा का यह प्रयास होना चाहिए और ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि दुष्टता इतनी न बढ़ जाए कि भगवान को आना पड़े। ऐसे मन हमें तैयार करने चाहिए जो पहले ही लड़ें, पहले ही आए। न्यूक्लियर पावर को इस्तेमाल क्यों करना है? फ्रंटलाइन हमारे पास होनी चाहिए जो कि इसको झगड़ा के निपटा दे किसी भी चीज को। एक और बात, भगवान ने बहुत अच्छी बात गीता में कही और हम सबके लिए प्रासंगिक है, रोज प्रासंगिक है। वो क्या बोलते हैं कि जो बीत गई सो बात की, जो बीत गई है उसे मत चिंता करो, छोड़ दो उसको। इंग्लिश वाले बोलते हैं मूव ऑन। भगवान ने उस समय कही थी, 5000 साल पहले कही थी। और भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान चल रहा है। ये जो वर्तमान है ना, जो ये पल है, यही सत्य है, यही सत्य है, यही शाश्वत है, यही जीवंत है। इसको जीना सीखो। फोकस, कॉन्सेंट्रेशन ऑन प्रेजेंट, वरना दुखी रहोगे। अगर आज हम अच्छे से करेंगे, कल हमारा अच्छा होगा। जो गया सो गया, उस पर मत रो। ये बहुत अच्छी बात है जो कि भगवान ने कही कि पास्ट इज बिहाइंड, द फ्यूचर इज अहेड एंड द प्रेजेंट इज हियर टू लिव। तो भारत के बच्चों को प्रेजेंट को जीना आना चाहिए। ये जीना तब आएगा जब शिक्षा में हम सिखाने का प्रयास करेंगे। ये बहुत आवश्यक है। प्राध्यापकों को, मुझ जैसे लोगों को, शिक्षा से जुड़े लोगों को, शिक्षा की जो पॉलिसी है उनको इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि किस तरीके से हम इस तरीके के शिक्षा तंत्र के एक्सपेरिमेंट करें कि बच्चा प्रेजेंट में जिए। भविष्य तो अच्छा अपने आप होगा यदि प्रेजेंट अच्छा होगा। इसी कारण से शायद गीता से प्रभावित होकर भारत के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री
कहते हैं कि यही समय है, सही समय है। ये गीता का ही तो ज्ञान है। जब भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि यही समय है, सही समय है, तो गीता में, शिक्षा में गीता के मूल्य तो आने ही चाहिए। यदि अब नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियों को हम क्या जवाब देंगे? 75 साल हो गए। आगे जब भारत 100 साल प्रधानमंत्री ने विकसित भारत का जो संकल्प लिया है, ये तब तक तो हमें काम पूरा कर ही लेना चाहिए। 10-20 साल में अच्छे तरीके से कर लेना चाहिए, क्योंकि आज जो पीढ़ी नर्सरी में है, पहली क्लास में, दूसरी क्लास में, तीसरी क्लास में आएगी, 5वीं में है, 8वीं में है, ये वो लोग होंगे जो उस समय देश चलाने का काम करेगी। वो पीढ़ी आज से 25-30 साल के बाद में उनकी चुनौतियां आज की चुनौतियों से बहुत अलग होंगी। इसी कारण से गीता की बहुत आवश्यकता है। तो शिक्षा में एक प्रश्न मेरे मन में आता है कि शिक्षा में क्या धर्म को होना चाहिए? होना ही चाहिए। आप लोग विद्वान हैं, कुछ करिए, कुछ सोचिए, कुछ समझिए, होना ही चाहिए। गीता पर उपदेश और प्रवचन आवश्यक हैं, परंतु ये पर्याप्त नहीं है। गीता पर उपदेश और प्रवचन आवश्यक हैं, परंतु वो पर्याप्त नहीं है, नेसेसरी है, सफिशिएंट नहीं है। मूल है कि इसका शिक्षा में समावेश किया जाए और इंप्लीमेंट किया जाए, सही तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए, प्रभावी तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए स्कूल से लेकर और हायर एजुकेशन तक। इतना प्रैक्टिस होना चाहिए कि ये हमारे रिफ्लेक्सेस में आ जाए। आपको अचानक लगे कि कुछ हो रहा है तो हाथ एकदम जाता है आपकी रक्षा के लिए। आप सोचते थोड़ी हैं, ब्रेन से सिग्नल इतना फास्ट जाता होगा, आपके रिफ्लेक्सेस में आ जाए, आपके मसल्स में आ जाए, आपके पूरे सिस्टम के अंदर, आपकी समझ के अंदर। ये मैं तो 5-7 ही बाब लिए हैं, बाकी बहुत सारा ज्ञान है। या हमारा बचपन से रिफ्लेक्सेस में आ जाए कि हमें गलत काम करना ही नहीं है, हमको देश की चिंता करनी है, हमको देश के लिए काम करना है, हमको दूसरों के हित की चिंता करनी है अपने हित से ज्यादा। कर्मण्येवाधिकारस्ते का सिद्धांत, यानी हमारे रिफ्लेक्सेस में आना चाहिए। तब इस देश में जो आवश्यकता है गीता से वो पूरी होगी। और मैं ऐसा मानता हूं कि एक अच्छी शुरुआत गांधी भवन ने की है। दिल्ली विश्वविद्यालय के हम सभी की ये सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि इसको सही तरीके से इंप्लीमेंट करें, तभी इसको कराने का इनका जो ये काम है ये सार्थक होगा। और मैं बहुत आशावान हूं कि हम कुछ अच्छा करेंगे, मिलकर अच्छा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार। Thank you very much, sir. As always, your words are very inspiring, teaching us the past is gone, the future is ahead of us. What we have is today. That is why it is called the present. It's a gift that we must cherish. It is an honor for University of Delhi as we have as our chief guest today, Shripad Bhaktivedanta Siddhanti Maharaj Ji, a spiritual leader with extensive knowledge of scriptures and Vedanta. His teachings of Gita have helped thousands across the world to adopt a sattvic way of life, where we talk about renunciation, not of the world, but of bad habits, thoughts, and practices. I request our chief guest, Shripad Bhaktivedanta Siddhanti Maharaj Ji, to kindly enlighten us with his words. Hare Krishna. Welcome everyone. हम लोग IGBT इंटरनेशनल गौड़िया वेदांत ट्रस्ट पूरे वर्ल्ड में भगवत गीता को आधार लेकर फाउंडेशन करके इसका प्रचार करते हैं। लेकिन आज यहाँ पर गांधी भवन और दिल्ली यूनिवर्सिटी में महानुभावों से मिलकर बड़ा आनंद हुआ। मैं सबसे पहले हमारे वाइस चांसलर महोदय श्री प्रोफेसर योगेश सिंह जी का आभार प्रकट करता हूं। वे समय निकालकर यहाँ पर आए और इतना सुंदर भाषण दिया, मैं खुद प्रभावित हो गया। इन तक पहुंचाने के लिए गांधी भवन के डायरेक्टर प्रोफेसर केपी सिंह जी, यदि ये नहीं मिलवाते तो मैं योगी जी से कैसे मिलता।
उनका भी आभार प्रकट करता हूं। अच्छा, बैठे बैठे सोच रहा था नाम भी कैसा लिखा, योगेश, नाम ही ऐसा है योगेश, और बात योग की कर रहे हैं, क्योंकि योग के ईश यदि कोई है वो तो कृष्ण ही है, और बात भी कृष्ण की कर रहे हैं। बड़ी सुंदर बात है। आभार प्रकट करता हूं श्री अनिल गुप्ता जी का भी, जो समय निकाल कर आए, और श्री बलराम जी, जो सब यहाँ कर बड़े बड़े डीन है, प्रिंसिपल्स है। एक समय ऐसा होता था कि प्रिंसिपल तो छोड़ो, टीचर के सामने भी पसीने छूटते थे। आज कॉलेज के प्रिंसिपल्स और डीन के सामने खड़े होकर आज भी थोड़ा सा नर्वस तो हो रहा हूं, लेकिन पुरानी बातें याद आ गई है। सब और से मैं आप सबका, जो छात्र भी आए हैं, स्टूडेंट्स हैं, और मेरे साथ मेरे कोलीग्स हैं, कुछ डिवोटीज हैं वर्ल्ड वाइड, स्पेशली आप लोगों से ही मिलने आए, और मैं एक कनेक्शन बिठाने आया। इनका कनेक्शन और हमारा कनेक्शन बन जाए तो हम इतिहास रच सकते हैं, और जो भगवत गीता हमारा आधार है, उसका प्रचार सारे विश्व में हो जाए, जो कि हो रहा है। वाइस चांसलर साहब कह रहे थे हम इसको करेंगे करेंगे, बिना अपमान सुने, बिना क्रिटिक्स लिए शायद सक्सेस मिलना थोड़ा कठिन होता है। इसलिए हम लोग आकाश से नहीं टपके, यहीं पर ही जन्म लिए हैं। कहां पर जन्म लिए? भारत में। थैंक यू। भारत में जन्म लिए, यहीं पर पड़े बड़े, लेकिन भारत का अर्थ क्या है? यदि संस्कृत भाषा में देखा जाए, हमारे इस देश का नाम इतना उज्जवल है, ऐसे नहीं क्योंकि हमारा यह जन्म हुआ, वी आर प्राउड ऑफ अवर कंट्री, लेकिन वी प्राउड ऑफ द डेफिनेशन ऑफ अवर कंट्री भारत। भा का मतलब होता है तेज, और रथ का मतलब होता है उस तेज में जो रत रहने वाले, वो है भारत। ये कौन सा तेज है? यह है शिक्षा का तेज। कौन सी शिक्षा? अध्यात्म शिक्षा। उस अध्यात्म शिक्षा का जो आधार है वो भगवत गीता है। अच्छा, गीता का मतलब ही क्या होता है? गीता का मतलब होता है, गीत तो सबको पता है, मैंने गीत गाया, किसी ने गीत गाया तो कहते हैं गीता है जी, भगवान ने जिसको गाया वो गीता है, तो उसको गीत कह देते, भगवत गीत कहते। गीता ही क्यों कहा? है ना, लॉजिक बनता है, भगवत गीत होना चाहिए, तो भगवान ने गाया है। नहीं सर, इसके पीछे लॉजिक है, इसके पीछे बहुत बड़ी ग्रेविटी है। जिस शब्द में ता लग जाता है उसका मतलब होता है त्राण। श्री वाइस चांसलर महोदय जी ने श्लोक बताया, कर्मण्यधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है गीता का। साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट श्लोक है, परित्रणाय साधुना विनाश दुष्कृतम। साधु का परित्राण और जो दुष्कृत है उनका विनाश, दोनों पैरेलल चलेगा। तो गीत और साथ में प्लस त्राण। त्राण मतलब होता है डिलीवरेंस। वो गीत जो भगवान ने गाया जिससे त्राण हो, डिलीवरेंस हो, सोसाइटी में अपलिफ्टमेंट हो, इसलिए उसका शब्द है गीता, ना कि जस्ट गीत। यह कोई साधारण गीत नहीं है, एक ऐसा गीत है जिससे डिलीवरेंस हो। किसकी? हम लोगों की। और हम लोग तो, हमारे पूर्वज सब बड़े विद्वान हैं, बड़े विद्वान थे। गीता भागवत पे बड़ी आलोचना होती थी। क्यों होती थी? अब यूनिवर्सिटी में खड़े तो बैठे बैठे बड़ा स्मरण हो रहा है, नालंदा यूनिवर्सिटी का क्या नाम होता था। विश्व से लोग यहां पर पढ़ने आते थे। आयुर्वेदा में, एस्ट्रोलॉजी में, ज्योग्राफी में,
हर एक ऐसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी उस नाम, भूगोल शास्त्र, इतनी इन डेप्थ स्टडीज होती थी उसकी कि सारे विश्व से लोग इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते थे। क्यों? क्योंकि वो अध्यात्म उसका आधार था। यदि हमारी फाउंडेशन कमजोर होगी, फाउंडेशन सिर्फ बिल्डिंग की नहीं, फाउंडेशन है समाज की, वही समाज की फाउंडेशन फिर मोरल्स पर चली जाती है, और वही मोरल्स फिर समाज से बढ़ते बढ़ते देश तक, और फिर देश से सारे विश्व तक जाती है। इसलिए हम लोग मंदिरों में भी विश्व का कल्याण हो, हम ये नहीं बोलते हिंदुओं का कल्याण हो, हम ये नहीं बोलते हमारे समाज का कल्याण हो, हम लोग ये नहीं बोलते हमारे देश का कल्याण हो। हम ऐसे हैं जो कहते हैं सारे विश्व का कल्याण हो, हम सारे विश्व की चिंता करते हैं। इसलिए भारत विश्व गुरु है, भारत विश्व गुरु है। एक बड़ी दिलचस्प कथा है। मैं फ्लाइट में जा रहा था यहां से अमेरिका, तो साथ में एक व्यक्ति बैठे और मेरे को कहने लगे कि ऐसा लगता है आप अपने घर छोड़कर आए हो, आप साधु बन गए हो। मैंने बोला मेरे को भी ऐसे लगता है। वो तो लंबी फ्लाइट है, थोड़ी सी चर्चा कर लें। मैंने कहा कर लेते हैं। कहते आपने अपने परिवार को छोड़ा होगा, माता पिता को। मैंने कहा हाँ। वो रोए भी होंगे, आप उनको छोड़कर चले गए। मैंने कहा ऑफ कोर्स अटैचमेंट होती है। वो तो यही वेश क्यों लेना था, आर्मी में चले जाते, देश का कल्याण हो जाता। बॉर्डर पे खड़े होते, क्योंकि बॉर्डर पे जो आर्मी सोल्जर होते हैं उनको हम सल्यूट करते हैं कि वो जागते हैं और हम लोग यहां सोते हैं, वो हमारे पहरेदार हैं। जब ऐसे ही करना था तो आर्मी ज्वाइन कर लेते। ये साधु वाला वेश क्यों धारण कर लिया, इसको क्यों ज्वाइन कर लिया? इससे लॉस टू द सोसाइटी, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। तो बड़ी देर तक उन्होंने अपनी बात सुनाई। मैंने कहा मैं कुछ कहूं? बोलते हाँ हाँ लंबी फ्लाइट है, चर्चा करते हैं। मैंने कहा मैं भी आर्मी और मैं भी सोल्जर्स को बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, नो डाउट मैं उनको सल्यूट करता हूं, लेकिन एक बात मैं आपको बतलाऊं, वो बॉर्डर पे खड़े होकर देश की रक्षा करते हैं। किससे? शत्रुओं से। लेकिन क्या देश के अंदर भी रक्षा की आवश्यकता है कि नहीं है? देश के अंदर भी उतनी ही आवश्यकता है जितनी बॉर्डर पर है। उस देश के मोरल्स कहां से बनते हैं? हम लोगों ने अपना जीवन त्याग किया, परिवार को, सारे समाज को भी साथ लेकर हम लोगों ने वॉलंटियर एक सेवा ली है। क्या सेवा? सारे विश्व में जाकर अपने भारत की संस्कृति का, वैदिक संस्कृति का, भगवत गीता का प्रचार करेंगे। डू और डाई, हम उस पर बिलीव करते हैं। देश के सोल्जर को तो फिर पेंशन मिलती है, उसको फैसिलिटी मिलती है, लेकिन साधु समाज को गवर्नमेंट से कोई फैसिलिटी नहीं मिलती। वो वॉलंटियर अपने खून पसीना एक कर कर समाज के अंदर जो रक्षा की आवश्यकता है उसकी रक्षा करती है, उसके मोरल्स बनाकर। कर्म में विकार अस्तु मां फलेषु कदाचन, कर्म पर आधार रहेगा। हमारे कर्म अच्छे कैसे होंगे? जब तक हम ये स्पिरिचुअल वैल्यूज और मोरल्स और आध्यात्मिक शिक्षा नहीं सुनेंगे तो पाप करने के लिए हम सब तैयार रहते हैं। वेरी ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट। पाप करने की प्रवृत्ति ज्यादा रहती है और उसको कम करने की प्रवृत्ति, जो टेंडेंसी, वो कम होती है। लेकिन जब हम ऐसे प्रवचन सुनते हैं तो जागरूकता होती है, नहीं मेरे को गलत काम नहीं करना है। इससे देश के अंदर की रक्षा हम लोग करते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू कौन समझेगा? इसलिए हमको, मैं तो यही कहूंगा कि सिलेबस में भगवत गीता को रखना चाहिए। हमको सिलेबस में रखना चाहिए, सिर्फ ये मान के नहीं कि हिंदुओं का ग्रंथ है। मैं तो भगवत गीता बहुत पढ़ ली, कहीं एक शब्द भी हिंदू नहीं देखा वहां पर। कहीं ये नहीं लिखा ओ अर्जुन तुम हिंदू हो इसलिए तुमको बतला रहा हूं। एक शब्द भी हिंदू नहीं है भगवत गीता में। जहां पर भगवान आत्म तत्व पर बोल रहे हैं
शरीर और आत्मा का भेद क्या है, जो मनोविज्ञान के संबंध में बोल रहे हैं, इंटेलिजेंस के संबंध में बोल रहे हैं, अपने में बता रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात लगी मेरे को, सर ने अभी प्रवचन दिया, बड़ी अच्छी बात लगी। अहिंसा परो धर्म है, ये आदि बात है। सिर्फ अहिंसा नहीं करना ये तो ठीक है, लेकिन फिर करना क्या है, धर्म की रक्षा भी करनी है, ये बहुत जरूरी है। ये सेकंड पार्ट अगर हट जाए तो समझ नहीं आएगी पूरी बात। वो धर्म क्या है, वो धर्म कोई हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियनिटी नहीं है, ये बिलीव्स है। These are not religions, they are just beliefs. Because we all are soul. Bhagavad Gita teaches the concept of soul. We are soul. It's not that Christians, they have a different soul. Muslims have different souls. They are not defined by the soul. Soul is one. And there is only one religion for the soul. Save punsa paro dharmo yatha bhakti adhokshaje. सभी जीवों का एक ही धर्म है जो डिफाइन किया गया है। कहीं पर देखो, हमारे रामायण में देख लो, गीता जी में देख लो, भागवत में, मैं भागवत कथा करता हूं पूरे विश्व में जाकर, मैं हिंदू शब्द तो कहीं नहीं देखा। जहां पर भगवान ने कुछ बात कही है तो वो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए कही है, सोल के लिए कही है, जीवात्मा के लिए कही है, शरीर के लिए नहीं कही है। ये शरीर के बिलीव्स है, डिफरेंट बिलीव्स हैं, लेकिन आत्मा का एक ही धर्म है, यथा भक्ति, वो सरेंडरनेस। और उसका जो आधार होगा वो क्या होगा? देखो, शत्रु से हम देश की रक्षा कर सकते हैं, लेकिन सारे देश की रक्षा करने का जो आधार है वो शिक्षा है। शिक्षा जो नर्सरी से हम पढ़ते आए हैं, जो हमको सिखाया गया है, जो सीखेंगे वही तो समझेंगे और वही तो बोलेंगे। आज हम पूरा, जब हम हिस्ट्री में पढ़ते थे, मुगल्स के बारे में पढ़ते थे, सब पढ़ते थे, लेकिन कभी हमको गीता नहीं सिखाई गई, कभी नहीं बताया गया। अब हम क्या करें, हम स्कूल में जाएंगे, लाचार हैं, जो सिलेबस में पढ़ना पड़ेगा, ये तो प्रमोशन कैसे होगी, नेक्स्ट क्लास में कैसे जाएंगे, यूनिवर्सिटी में कैसे जाएंगे, पीएचडी कैसे करेंगे। वी आर बाउंड, जो सीबीएसई सिलेबस में है, जो आईसीएसई सिलेबस में, वो पढ़ना पड़ेगा हमको। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको जाती है? शिक्षा विभाग। सभी मंत्री बैठे, इस पर विचार करें, ये भविष्य है हमारा। पास्ट इज पास्ट, वी हैव टू थिंक अबाउट फ्यूचर, दैट्स आवर फ्यूचर। और उसका फाउंडेशन, ये आधार है, उसको नर्सरी लेवल से सिखाना पड़ेगा। नर्सरी लेवल से हमारे भारत के वैल्यूज, भारत का मतलब क्या है, ये हिस्ट्री जब तक हम नहीं सीखेंगे, नहीं पढ़ेंगे, कभी पता नहीं लगेगा। पहले हमको भी नहीं पता था, जब तक मैं इस देश में नहीं आया था, हमको भी नहीं पता था। जो मन में आता था उसको बिलीव कर लेते थे, लेकिन एक प्रॉपर प्रोसीजर, एक प्रॉपर ट्रेनिंग, वो हमको बचपन से सीखनी पड़ेगी। नहीं तो वो दादी सुना देगी रामायण, नानी सुना देगी रामायण, लेकिन स्कूल में तो नहीं सिखाएंगे। और हमारा एक, देखो प्रैक्टिकल बात बताऊं, एक स्टूडेंट का सारा दिन कहां निकलता है? 24 घंटे में सारा मैक्सिमम टाइम उसका स्कूल और कॉलेज में निकलता है पढ़ने में, मैक्सिमम टाइम। अब कोलिग्स के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करना या क्लासेस अटेंड करना, ये प्रैक्टिकल बता रहा हूं क्योंकि मैं स्टूडेंट रह चुका हूं। हमारा सारा समय स्कूल में निकलता था। वही ऐसा स्थान है जहां पर हम सब सीखेंगे, और जो हम सीखेंगे अभी से शुरू करेंगे, देखना 10 साल बाद भारत का भविष्य बदल जाएगा। थैंक यू सो मच। Thank you very much. I'm sure just like me, you too would be interested in hearing more from Maharaj Ji. So you will not be disappointed, because after the inaugural session and after a short break, we have a whole range of programs which include Kirtan by devotees of the IGBT. We have Bhagavad Gita in Today's World by Mr. Sachin Agarwal from the United States. We have Holy Bhagavad Gita, a treatise of spiritual biology
by Dr. Puneet Gupta, and another lecture by Sripad Bhakti Vedant Siddhanti Maharaj Ji on spirituality in a modern day society, and many more. So I would request all of you to stay on for a bit longer, but for now I request Professor Mamta Sharma, Principal Aditi Mahavidyalaya, to kindly propose the vote of thanks. Thank you, Dr. Bhatia. Namaskar to the esteemed guests on the dais. Good afternoon, everyone. It's my honor and privilege to propose vote of thanks on behalf of Gandhi Bhavan, Aditi Mahavidyalaya, and IGVT for holding the international seminar on Bhagavad Gita's values in modern education and management. On behalf of Gandhi Bhavan, first and foremost, I extend a heartfelt gratitude and thanks to Chief Guest Sripad Bhakti Vedanta Siddhanti Ji Maharaj for his gracious presence and blessings on this occasion. I extend my deepest gratitude to our Honorable Vice Chancellor, Professor Yogesh Singh Ji, for his thought-provoking presidential address and his outstanding leadership, guidance, and mentorship. I also take this opportunity to extend heartfelt thanks to Honorable Vice Chancellor for his all-time encouragement, motivation, and setting up an example as a legendary leader. I take this opportunity to thank Professor Shri Prakash Ji, Director, South Campus, for his gracious presence and blessings. My most sincere thanks to the distinguished deans, directors, heads of departments, principals, professors, EC members, AC members, university officials, research scholars, students of different colleges of university. Special thanks to the Krishna devotees from USA, UK, Netherlands, Germany, Africa, Brazil, Spain, Guyana, Australia, Hong Kong, and many more countries. I would like to add one thing, and that is by embedding the Bhagavad Gita's values into the educational and managerial practices, we can achieve the NEP 2020 vision of an education system that nurtures to ethical, skilled, and globally aware individuals while staying deeply rooted to Indian culture and spiritual heritage. This alignment creates a framework for empowering the learners to contribute meaningfully both to the personal and to the societal growth. My sincere thanks also to Professor Rupan Kapoor, Secretary, Garden Committee, Professor Sanjeev Singh, Director DUCC, Shri Ashok Sen Ji, Chief Engineer, University of Delhi, for their logistic support. Last but not the least, thanks are also due to the media persons for covering the event and broadcasting the worldwide through social media. Thank you one and all. Thank you, Jai Hind. I request everyone to kindly rise for the national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल
जनदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you very much. I request all of you to kindly join us for refreshments.